हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग समराइज करने वाले हैं यूनिट नंबर 33, सो विच इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, सो आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन विद योर स्टडीज, विद योर हेल्थ एंड विद योर प्रोफेशन। तो कैसे हैं सभी लोग? एक बार जल्दी से आपका कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। सो नाउ गाइस, if you talk about unit number 33, so it is all about standard costing. Again, a very important units. You can expect at least 2 to 3 marks question based on this particular unit. So we will go through the course content as per your Macmillan book. Okay. So we have under standard costing, the basic introduction, definition and meaning of standard costing, significance and advantages of standard costing, application, various type of standard costing, components, then we have variance analysis, then we have accounting treatment of variance, and we have benchmark setting and reporting of variance to management. So these are the subtopics which are generally part of your unit number 33, which is standard costing. So now I hope everybody is aware about what is standard costing. It is a costing method, so where we generally compare our estimated cost with the actual cost, right? And the difference between estimated cost and actual cost is generally known as variance. Okay, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे होता है? सो लाइक लेट्स से इफ वी आर मैन्युफैक्चरिंग, वी आर अ मार्कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है? So suppose that our estimated cost, which is standard cost, is suppose that 100 rupees for this one, and the actual cost incurred is suppose that 105. So like we have a negative variance, and variance is basically difference between standard cost and actual cost. Okay, so the difference between these two is generally known as variance. So now we will do the root cause analysis for this particular variance आपका, ठीक है? तो देखो क्या होता है कॉस्टिंग मेथड। आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दैट कॉस्टिंग थिंग्स। तो कॉस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है आपका। भले ही रोल आपका छोटा है, बट आपका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइसिंग इटसेल्फ वी विल प्लान आर रिमेनिंग थिंग्स। लाइक जैसे दिस इज योर कॉस्ट, so we will decide the selling price. Suppose that selling price is 120. So we have a margin of 20 rupees. Okay. So 20 rupees per marker हम लोग margin लेके चल रहे हैं, ठीक है? So this will decide your, with the help of this, we will calculate our break even point, and we will decide the margin of safety. तो ये सारी चीजें आपका जो यहाँ से डील करती। अब देखो क्या होगा इफ अगर हम लोग अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, if there is a difference or if there is a negative difference or negative variance in our standard costing, it will impact the entire areas. जैसे इस situation के अंदर आपका now your margin will remain only 15 rupees due to this negative variance. Okay, so अब कहीं ना कहीं ये आपके profit आपका या अदर जो एरियाज हैं उनके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आपका डालने वाला, ठीक है? सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो काफी ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे based on the past data and experiences we decide this particular cost, then we relate or analyze that particular cost with actual cost, ठीक है? Then we do the root cause analysis. तो जो भी आपका जैसे तीन वेरिएबल्स होते हैं, रॉ मटेरियल, देन लेबर एंड ओवरहेड्स, तो यहाँ पे कहाँ पे वो वेरिएंस आया है and who is responsible for that particular one, that we generally get to know by doing the variance analysis, right? So अगर हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, so standard cost of a product or service refer to the cost expected to be incurred to produce a good or to provide a service under anticipated conditions, keeping in view the prevailing market conditions. This is generally based on past data and your experiences of managers. Standard costing is an costing techniques that assign fixed manufacturing cost to a specific product or product line. This method let companies know the production cost for a certain number of items, right? So the difference between standard cost and actual cost is known as वेरिएंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएंस आपका। कई बार वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है? वो आपको देगा कि लेट्स से एस्टिमेटेड नंबर ऑफ, जैसे अगर लेबर वेरिएंस पे देता है, ठीक है? सो रिक्वायर्ड आर
estimated hours was 500 at the rate of 200 per hours, actual was 550 at the rate 180. So कैलकुलेट दी वेरियंस, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साथ उसको आपका सॉल्व करना है, ठीक है. So the difference between the standard cost and actual cost is known as variance. The presence of variance indicate deviation from what was recorded in the profit plan. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट के ऊपर उसी तरीके से इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा. इट कैन बी पॉजिटिव साइड, इट कैन बी नेगेटिव साइड, राइट. So if actual costs are greater than the standard cost, so management can likely anticipate lower profit, and अगर आपका उल्टा होता है, so we can expect higher profit. ठीक है, तो जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम आती है आपके स्टैंडर्ड से, ऑब्वियसली यूल हैव हायर प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला जिसमें आपका फर्स्ट वी हैव डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, देन वी हैव डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स ओवरहेड्स. देखो दीज आर द पैरामीटर्स, मेजरली दीज थ्री. ठीक है, सो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. यहीं से आपका जो, जैसे आप वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, तो जैसे आपका लेट्स से वी आर प्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर मार्कर इन 100 रुपीज, ओवरऑल आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 100 रुपीज. तो जिसमें आपका सपोज दैट मटेरियल कॉस्ट वाज 30 एंड डायरेक्ट लेबर वाज सपोज दैट आपका अगेन 30 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वाज सपोज दैट 40. तो ये आपका इस तरीके से था. Now, when you'll compare this particular with actual, suppose that material cost was आपका 35, ठीक है, labor cost और direct labor was suppose that 30 and your manufacturing overhead was suppose that आपका कितना 40 है, so suppose that it was 38. ठीक है, so the total of these particular one is how much, आपका 103 आपका. ठीक है, 103. So we have a negative variance of 3 rupees. जब आपने एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ है. सो गड़बड़ हुआ है आपका इसके अंदर. ठीक है, एंड यहाँ पे हमने आपका नेगेटिव रहा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रहा. सो नाउ वी कैन डू द रूट कॉज एनालिसिस, अकॉर्डिंगली वी कैन मेक डिसीजन. सो आने वाले समय में वी कैन हैव करेक्टिव एक्शंस अबाउट दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो इतना ही. ठीक है, सो एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारे एडवांटेजेस गिनाए इसके. जैसे with this if we will have that root cause analysis, so will हर किसी की आपका अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट है, सारी चीजें कॉस्ट शीट के अंदर हैं, मिस हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसको हम लोग बोलते हैं, या रिसोर्सेज विल बी यूज इन अ एफिशिएंट मैनर, राइट. सो फर्स्ट अलाउ कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, विद कॉस्ट शीट. आपका हेल्प मैनेजमेंट टू मेक डिसीजंस, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है इन अदर्स. ठीक है, एंड विल हैव एक्यूरेसी इन आवर बजट, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है, अब देखो एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में क्या होता है कि पहले हम लोग प्रोडक्ट को आपका डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आपका डिजाइन करने के बाद सारी कॉस्ट को ऐड किया, तो यही मार्कर आपका बना 150 रुपए में. ठीक है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे 105 रुपए में आपका अचीव कर लिया. सो दिस डिफरेंस कम ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि जहाँ पे आपका प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका फिक्स है. ठीक है, सो एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें, सो एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सो सम ऑफ द मेन एप्लीकेशन जैसे द मैनेजमेंट यूज इट फॉर प्लानिंग पर्पस. द प्रोडक्शन, सेल एंड प्रॉफिट बजट आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट. It is used to measurement of variance between standard and actual or estimated and actual. It is used to identify the areas of inefficiencies so that corrective action can be initiated. It affect the controlling the actual cost as management get timely information about the various variance at each cost centers. It also used to measure the performance of each cost center or departments. It can be used to motivate the workforces to contain the expenses within set standard, and it's also helpful in inventory valuation. So these are the uses of standard costing in our organization. I hope ये समझ में आया होगा. This is a very simple one, right? चलो next one, if you go for the next one, ठीक है. So next we have component of standard costing system. So what components we use in this particular system? So first one is आपका
डिसीजन ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो ये तीनों आपका, दीज थ्री आर द मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है, जो अभी मैंने आपको वेरिएंस एनालिसिस में भी बताया था। डिसीजन ऑन प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रिपेयरिंग द बजट फॉर बजट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। तो यहीं से, जैसे आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 था, तो हमने आपका सेलिंग प्राइस 120 रखा था, तो वहां से हम अपना सेल्स नंबर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, इतना हमें सेल करना होगा, सो वी विल बी एबल टू अचीव द ब्रेक इवन नंबर्स और अदर्स भी आपका, ठीक है। सेग्रीगेटिंग, एसरटेनिंग एंड रिकॉर्डिंग द एक्चुअल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, finding out the variance of various cost component, those three components, analyzing the variance and ascertaining the causes of variances, initiating corrective actions in areas showing variances, right? तो ये आपके आपका बेसिक, अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट्स, बेसिकली जो तीन एरियाज आपके हैं उन्हीं के अराउंड आपका जो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट थिंग आपका, अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, सो वी हैव मटेरियल कॉस्ट, वी हैव लेबर कॉस्ट एंड वी हैव ओवरहेड्स, ठीक है। ये तीन चीजों से आपका कोई प्रोडक्ट रेडी होता है, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जो आपके आते हैं, ठीक है, तो दीज आर पार्ट ऑफ योर एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो इनमें आपका एक्यूरेसी कि जब आप उनका एनालिसिस करें या जब भी हम उनको डिसाइड या डिफाइन करते हैं, सो इट शुड बी इन अ करेक्ट मैनर, राइट? So benchmark to be used in ascertaining the standards, peculiar operational aspect of the organization, whether the standard to be applied by the organization is basic, ideal, or currently attainable standards. We have proper identification of cost centers so that the variance may be probably properly segregated, right? So the standard costing system start with the ascertaining the standard cost of elements which are आपका material, labor and overheads. As the efficacy of the standard costing system depend largely upon the contract करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, मतलब उसकी जो प्रभावकारिता है वो टोटली डिपेंड करती है कि कितने सही से आप एस्टिमेशन आपका लगा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे, और अगर वो सही होंगे तो कहीं ना कहीं जो वेरिएंस होगा वो आपका क्या होगा, मिनिमल होगा या ना के बराबर होगा, ठीक है। सो नाउ we have these three. First one is direct material. So direct material cost are the cost of raw material or part that go directly into producing product. जैसे इसके लिए आपका मार्कर है, इंक है या अदर्स जो भी इसमें कंपोनेंट्स आपके लगे हैं, प्लास्टिक एंड अदर्स, ठीक है। सेकंड आपका डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज हु इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, जो लेबर आपके मशीन पे काम करें, वो नहीं जो उसको बेच रहे हैं या जो इसको अकाउंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन आपका, जो डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। So direct labor cost are the wages, benefit and insurance that are paid to employees who are directly involved in the manufacturing and producing the goods. जैसे workers आपके हैं, assembly line से others, इन सब के अंदर। Overheads की अगर हम लोग बात करते हैं, manufacturing overheads. So manufacturing overhead cost include direct factory related cost that incurred when producing the product, such as cost of machinery and the cost of ऑपरेट द मशीनरी, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स में से कितना पोर्शन हमने यूज किया टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज डायरेक्ट और दैट इज जनरली नोन एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आपका दो तरीके से, एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी प्लांट्स और कुछ ऐसे आपका जैसे इनडायरेक्ट में क्या रहेंगे, जैसे आपका जो गार्ड होता है, ठीक है, जो सेफ्टी गार्ड है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में, बट ही इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वन, सो दैट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। सो डायरेक्ट मटेरियल आपका indirect material. Indirect material are material that are used in the production process but that are not directly traceable to the production. जैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ऐसी चीजें, जैसे पैकिंग जब कर रहे हैं तो इस पे आपका जैसे इसको चिपकाने के लिए ग्लू यूज किया गया या सेलो टेप यूज किया गया या स्टेपलर यूज किया गया, सो दोस टाइप ऑफ थिंग्स आर जनरली इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट लेबर की बात करें, जैसे मैंने आपको गार्ड की बात की थी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ग्लू, ऑयल, टेप, cleaning supplies and etc, ठीक है। Indirect labor is the labor of those who are not directly involved in the production of product. An example, जैसे security guards, supervisors, quality assurance workers in the factory. So their benefit, their wages and benefits will be part of your indirect labor. तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका manufacturing overheads, ठीक है। So it can be related to
आपका इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर आपका, ठीक है। सो अब आते हैं आपका वेरिएंस एनालिसिस पे। अब देखो ये वेरिएंस एनालिसिस नाम सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ एनालिसिस आप करने वाले हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सो वी हैव थ्री फैक्टर्स, आपका मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड, ठीक है। इन तीनों से आपका ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इन तीनों से मिलके हमने ये चीज आपका डिजाइन किया, ठीक है। सो सपोज दैट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे आपका लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और आपका ओवरहेड्स, ठीक है। सो सपोज दैट आपका ओवरऑल इज 100 रुपीज, ठीक है। कुछ आपका इस तरीके से 100 रुपीज था, जिसमें से ये था आपका 40, ये था आपका सपोज दैट 40, ये था आपका 30, ठीक है। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपका एक्चुअल कॉस्ट, इनका जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज समथिंग लाइक दिस, सपोज दैट दिस वेंट 45, this went 40, suppose that this remained 40 and this went 35, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 10 एक्स्ट्रा है, 110 आपका, ठीक है, 110। so difference between standard cost and actual cost is known as variance and we have a negative variance of 10 rupees। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं वेरिएंस एनालिसिस का, so we have डायरेक्ट लेबर एनालिसिस, आपका मटेरियल एनालिसिस एंड ओवरहेड एनालिसिस, ठीक है। तो जैसे दिस पार्ट इज 100% फेयर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वी हैव अ नेगेटिव वेरिएंस ऑफ 5, यहाँ पे वी हैव अ नेगेटिव वेरिएंस ऑफ 5। सो नाउ विल डू द रूट कॉज एनालिसिस फॉर दीज टू वेरिएबल्स, सो जिसको हम लोग आपका वेरिएंस एनालिसिस के नाम से जानते हैं। सो वेरिएंस एनालिसिस इज बेसिकली the reason behind this particular difference between standard cost and actual cost। तीन पार्ट में होता है, वो आपका लेबर, आपका मटेरियल और आपका ओवरहेड्स, ठीक है। सो ओवरहेड वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस आपके सामने है। थ्योरी अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा आपको हमेशा वो डिफिकल्ट समझ में आती है, ठीक है। So the standard costing primarily intend to find the differences between actual cost and estimated budgeted cost। Variance in standard costing refer to the deviation of actual cost from the standard cost। It can be three type। पहला आपका material cost, labor cost और overhead cost variance, ठीक है। सो वेरिएंस एनालिसिस होता क्या है दैट वी ऑलरेडी स्टडी, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट में क्या मिलेगा आपको, सो बोथ परचेजिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड ऑन दी ईच अदर्स। so we have to look into the only purchasing cost but also production cost is total variance। so दोनों एरियाज को आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल आपका जैसे आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट was suppose that 40 and actual was suppose that 42, so you have a negative variance of 2। so what is the reason, that is your मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। एनालिसिस आप बोल दीजिए। लेबर आपका प्रोजेक्टेड लेबर वर्सेस एक्चुअल लेबर आपका, ठीक है, एक्चुअल लेबर वर्सेस प्रोजेक्टेड। सो इफ यू पेड टू मच और if you use too many hours, so these can be reason for your labor cost, ठीक है। ओवरहेड्स की अगर हम लोग बात करें, so actual variable overheads incurred for the actual output of the business, the standard variable overheads we should have incurred for the actual output, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। रीजन फॉर ओवरहेड्स, अब ये आपका जो ओवरहेड्स वेरिएंस है इनमें आपका डिफरेंस आने के रीजन क्या क्या होते हैं। पहला, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स ओवरहेड्स, ठीक है, जो मशीन एंड अदर्स है उनका। फॉल इन डिमांड और इम्प्रॉपर प्लानिंग कुड बी अ रीजन। ब्रेकडाउन और पावर फेलियर, जहां पे आप अपने मशीन और अदर्स लेबर या अदर्स इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। लेबर स्ट्राइक आपका हो गया। इन्फ्लेशन कैन बी अ रीजन। इसके अलावा लैक ऑफ प्लानिंग आपका, ठीक है। सो दीज आर द मेजर रीजन बिहाइंड द वेरिएंसेस आपका, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वेरिएंस आता है। कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो कहां कहां पे इस्तेमाल होता है ये। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पहला आपका डिसीजन ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स फॉर प्रोडक्शन लाइन। डिसीजन फॉर द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रिपेयरिंग द बजट ऑफ सेल, ये हमने पढ़ा भी था। सेग्रीगेटिंग, ascertaining and recording the actual cost, finding out the variance, analyzing the variance, initiating corrective actions। ये हमने पास्ट में भी आपको एक बार डिस्कस किया था, तो आई होप ये सबको समझ में आएगा। सो दिस इज इट। तो ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। सो यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप पकड़ के चलिए, आपको आने वाले एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स ईच आपका 2 क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। या कई बार आपके हाफ मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ आपको कॉम्बिनेशन बना करके चलेगा। अब जो अगला सेशन है ना गाइस, मार्जिनल कॉस्टिंग,
जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे कौन कौन से आपका, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करूँ, तो जैसे आज हमने पढ़ा वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस हमारा निकला। कल हम लोग बात करेंगे वेरिएंस। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। फिर हम लोग आपका कैलकुलेट करना सीखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे प्रॉफिट। ठीक है, अब इससे पहले आप ऑलरेडी कुछ चीजें सीख चुके हो, जैसे आपका प्रॉफिट टू डेट। ठीक है, प्रॉफिट, ये सारे न्यूमेरिकल जिन पे आपका बनते हैं, प्रॉफिट टू डेट। ठीक है, इसके अलावा आपका फिर आपको एक और चीज हमने समझी थी, यूनिट पर कॉस्ट। ठीक है, यूनिट पर कॉस्ट, यूनिट पर सॉरी कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट। तो दीज आर द एरियाज। तो अब ये जो तीन चार एरियाज है ना, ये कल वाले सेशन में आपको मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप मॉड्यूल डी के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे ना, जितने पॉइंटर्स मैंने देखे, हर साल हर बार एग्जामिनेशन में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर। कल फिर से मैं आपको मिलूंगा 7 बजे, और कल फिर से हम लोग, कल हमारा जो यूनिट होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद एक और यूनिट आपका बजट एंड बजटरी प्लान। ठीक है, देन हमारा एएफएम खत्म। ठीक है, तो फिर हम लोग आपका एमसीक्यूज पे या एक दूसरे सब्जेक्ट को आपका शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो आई होप सभी लोग इनको एंजॉय कर रहे होंगे। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ, जो साथी बैंकर्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। राइट, so this is it from my side guys, thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day, thank you.